family, like father, mother, and let's say two children. So brother and sister, they are not on the same page. Even husband and wife, there are some, disturbances there in the relationship. Even four people, they are not on the same page. It means there is a oneness missing. So I decided how we can, bring everyone together as one and deliver such a beautiful message. So the journey started from San Francisco. I was heading back to LA. There's a beautiful drive in California. It's called Pacific Coast Highway. Highway 1, So I drove that night and came to Hollywood. I was not able to sleep. So I said, something is there. So I come in a couple of days, the title, Highway 1 to Oneness. So then I started working on that. So it took some time, finally turns into script in 5-7 years. So since 2019, I've been working on this project. So I think we have a beautiful song. I will definitely tell you more about the project. I would say my journey from India to Germany, from Germany to US, it's amazing. But I want you guys to see that wherever I'm involved, I'm a philanthropist, I'm a visionary, and now I'm, of course, entrepreneur all the time, since age of 14. But how all these, all these directions I went, and that I can definitely explain to you. Let's watch. What do you think? Let's have a little more knowledge about you. Okay. And then we can go ahead and watch the trailer. Please. So I want to know, you said you're an entrepreneur. Yes. And you're a philanthropist as well as you're a visionary. Yes. So how is your entrepreneurship going on? Like, what did you do? How did you start? Yes. I started actually in the age of 14. I was trying to. मैं बहुत ही छोटा था तो हम लोग छोटे से गांव में रहते थे तो surrounded was like lot of farms and villages and all that तो हम लोगों ने cricket वगैरह खेलते थे age of 15 and then suddenly I saw all the giant colonies and people start coming and moving from the other directions and I say Dad अभी क्या हो रहा है इतने सारे लोग अचानक मेरा तो क्रिकेट का ग्राउंड भी चला गया कहते बेटे ये अभी तुम्हारा जो है लोगों को हेल्प करने का टाइम है माय डैड एंड माय मॉम दोनों जो हैं वो दे आर सोशल वर्कर सो हमने कहा ठीक है सो आई स्टार्ट हेल्पिंग सेलिंग मिल्क आई स्टार्ट हेल्पिंग विद हिम गोइंग एवरी डे एंड देन फ्रॉम देयर my dad wanted me to do engineering, electronic engineering. I finished in ITI in Nizamuddin. उसके बाद पापा अगले दिन वो जॉब लेकर आ गए मैंने बोला जॉब नहीं करना डैड मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है so it was very easy I started real estate consultant and working with lot of company Ansel, Jana, Vinod, lots of company in Sylvania, Lakshman बड़ी कंपनियों के साथ I started licensing job so that's what my entrepreneurship started very young age. So I was somehow doing very well, but still not happy. Then I started import-export business. I started sending merchandise to Germany. And then 1989, when I went there, the Berlin Wall was broken in front of my eyes. तो मैंने सोचा चलो boss, अभी exporter की बजाय importer बन जाते हैं. So I slowly decided, to live in Germany and have my import this license and I settled down in Germany. That's what, then I had a lot of success. I had a lot of retails, I had a lot of wholesale. I went to the real estate over there also. So that's what I was doing in Germany all the time. And from German city, I went into US because most of my family live in Michigan. So traveling back and forth in US and Germany. वहाँ चले गए. Alright, बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की. आप बताइए कि आपने फिलैंथ्रोपिस्ट बनने का कैसे सोचा? What exactly happened? जहाँ तक मेरी नॉलेज है आपकी कुछ फाउंडेशंस हैं, NGOs हैं. So कितने होमलेस पीपल को आप लोग फीड कर रहे हैं यूएस में? इंडिया में आपने क्या क्या किया?
देखिए, मैं इंडिया में तो बचपन से ही हम लोग, बिकॉज मदर वाज सोशल एक्टिविस्ट, डैड गवर्नमेंट सर्वेंट थे, बट थोड़ा सा वो सबकी हेल्प करते थे, तो बचपन से ही करते थे। बट जो रियल NGO स्टार्ट किया था वो 2014 में, इट्स कॉल्ड हेल्प फाउंडेशंस ग्रुप, that we start in Delhi, in Vijaypur. I was waiting, मैं वहाँ खड़ा था, तो वहाँ मैंने देखा रेलवे ट्रैक के ऊपर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो I was so scared. तो वहाँ जाकर मैं I was going to temple, Shiva temple, तो मैंने बोला वो बच्चे ट्रैक के ऊपर हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है, उधर से ट्रेन आ रही है, so I was scared. तो इतने सालों में बाहर रहते थे, बच्चों को रेलवे ट्रैक पे थोड़ा खेलते हुए I run to save them. तो इतनी देर में वो डिसअपियर हो गए। देन नीचे जाकर देखा कि इट वाज ऑल स्लम्स। तो आई वेंट लिटिल फर्दर, तो आगे गया तो मंदिर टूटा हुआ था, कोठियाँ टूटी हुई, तो मंदिर कहीं और जा रहा था, तो ऊपर वाले ने कहीं और भेज दिया। तो मैंने उसको बोला, बुलाया सबको, मैंने कहा ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ये सब ऐसे कहते सर ये हर बार आगे मंदिर को तोड़ के चले जाते हैं, अब अब हम क्या करें। सो देन इमीडिएटली आई सेड गाइस, let's take all those murtis and everything. We went to Jamuna ji and वहाँ पे हमने करवाई। उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है, my plan is now something big here. So I joined that whole slum area. तो वहाँ पर थोड़ा मैं I got involved with the whole project there. बाकी बातें हम लोग करते हैं आफ्टर। मैं आपकी जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको बुलाना चाहूँगी, उनसे कुछ बातें कर लेते हैं और फिर हम चलेंगे। ये हमेशा हेल्पफुल रहे हैं, इन्होंने लोगों को ऐसे लोगों को हेल्प किया है जिनको शायद खुद भी नहीं पता कि इनको हेल्प की ज़रूरत है। तो ये महायोगी तो पहले से ही रहे हैं, मतलब 16 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, लेकिन मूवी का ख्याल इनके दिमाग में शायद थोड़ा लेट आया, बट अदरवाइज़ ये महायोगी वननेस के लिए काम करने वाले ये 16-18 साल से रहे हैं। और जैसे उन्होंने बताया कि ये इस लाइन में बहुत पहले से जुड़ गए थे, बस ये मूवी का ख्याल उनको थोड़ा लेट आया। अदरवाइज़ ये हेल्प एज इंडिया जो भी हमने खोला, हेल्प फाउंडेशन है हमारा, ये 10 साल पुराना है, लेकिन आप ये सोचिए कि उससे पहले से ये लोगों को रेलवे ट्रैक्स पे मदद करना, उनके लिए पक्के घर बनाना, स्पेशली दिल्ली जैसी जगह में उनको खाना प्रोवाइड करना, मंदिर बनाना, मतलब। और आप ये भी देखेंगे जब आप हमारी वेबसाइट वगैरह पे जाएंगे तो इन्होंने इंडिया से बाहर भी उनका काफ़ी लोगों का हेल्प किया है। तो ये हमेशा। आप लोग बताइए आपको गाना कैसे लगा और वो ट्रेलर कैसा लगा। ये जो आइडिया आया 2019 में आया, जब मैं सैन फ्रांसिस्को से LA जा रहा था। तो वननेस का आइडिया तो बहुत सालों से है और बहुत पुराना है संसार के अंदर। विवेकानंद जी ने भी और वाहेगुरु ने भी, सभी स्पिरिचुअल्स लीडर्स ने ट्राई किया। तो आई वॉज ऑलवेज फीलिंग कि कुछ मिसिंग है, कि दुनिया में क्या मिस है। तो मेरे को हमेशा थोड़ा बॉदर करता था, फैमिली से लेके, फ्रेंड्स से लेके, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लेके, कहीं से भी लेके देयर इज सम डिस्कनेक्ट है। लोग अपने दिल से पूरा कनेक्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? तो मैंने इसको नाम दे दिया वननेस। देयर इज द वननेस मिसिंग। तो वननेस जो है बेसिकली द कॉन्सेप्ट केम बी वन विद एवरीवन, देयर इज अ वन विद इन एवरीवन। हर इंसान के साथ आप एक हो सकते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने अंदर का जो एक है उसके साथ एक है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि सुपरफिशियल वर्ल्ड में जीते हैं, ऊपर जीते, वो अपने आप तो कनेक्ट हो नहीं पाते। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ है पीस, लव एंड वननेस। पीस जो होती मन की शांति, कॉर्नर स्टोन ऑफ एनी कम्युनिटी। अगर पीस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब घर में एक छोटा सा घर है, उसमें शांति नहीं है, तो आप प्यार कैसे पैदा कर सकते हो? जो पीस, जो कनेक्ट है वो हमारे दिमाग से कनेक्ट है। अगर दिमाग शांति में है तो आगे तुम प्यार की बात में आते हो। तो प्यार तभी आता है जब हमारा दिमाग शांत है। तो द लव इज कनेक्टेड विद हार्ट। वो जो है दिल, प्यार दिल के साथ कनेक्ट है। और जो वननेस है, जो बहुत ही डीप में है, दैट इज कनेक्टेड विद सोल। तो मेरा जो मैसेज है सबकी आत्माओं से कनेक्ट करना है, क्योंकि
हम लोग मोस्टली जो दिमाग से कनेक्ट करते हैं, अरे ये बंदा बाहर से आए, बात करो, डिस्कस करो, बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है, बस हो गया। दिल से बहुत कम लोग कनेक्ट करते हैं। अगर हम दिल से भी कनेक्ट करते हैं तो भी हमारा दिमाग ज़्यादा चलता है। तो मैंने देखा, दुनिया में खुद एक्सपीरियंस किया, वर्ल्ड पूरा घूमा, मैंने पूरा देखा है कि देयर इज़ ए मिसिंग समथिंग, इस संसार के अंदर क्या मिस है। तो वो वननेस है, वननेस जो आत्मा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर मैं आपके साथ आत्मा से कनेक्ट नहीं हो पाता, पूरा डीपली नहीं जाता, तो क्या होता है कि वो 1 + 1 = 1 नहीं आता। वी आर नॉट ऑन सेम पेज। अगर दिमाग से कनेक्टेड हैं हम लोग तो सोचेंगे इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, इससे क्या लेना है, क्या देना है, क्या करना है, बस हम लोग वहीं तक घूमते रहते हैं। और जब हम डीपर में जाते हैं कॉन्शियसनेस के अंदर, द ट्रू कॉन्शियसनेस जो आत्मा है, द ट्रू कॉन्शियसनेस इज रियली ट्रूली मिसिंग इन दिस वर्ल्ड। मोस्ट लॉट्स ऑफ कॉन्शियसनेस ऑलरेडी इन द गटर, क्योंकि वो उतना ही सोच पाती हैं जिन गटर के हिसाब से। और कुछ कॉन्शियसनेस है वो नॉर्मल लेवल के ऊपर है, वो देखती हैं, फील करती हैं, अरे यार इसकी हेल्प करनी चाहिए, अरे ये गरीब आदमी है, यू नो। अब सब्जी वाले के पास हम लोग जाते हैं, उसको वो कहता है 200 रुपये, तो उसको बोलते नहीं नहीं 140 ले ले, 120 ले ले, 180 ले ले। तो ये एक बहुत ही चीप कॉन्शियसनेस है मेरे हिसाब से। अगर मेरे से सब्जी वाला 200 मांगता है तो मैं बोलता हूँ ये ले 200 रुपये रख, 10 रुपये एक्स्ट्रा रख। अगर ऑटो वाले के पास साथ मैं जाता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ भैया कितने पैसे हैं, सर वो 160 रुपया, तो मैं बोलता हूँ 200 रुपये रख। तो उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, उसकी जो आत्मा है, उसकी आत्मा से थैंक यू आता है। तो अगर हम उसको बोलेंगे भैया 160 नहीं 140 ले ले, 120 ले ले, तो हम कहाँ पे इसकी हेल्प कर रहे हैं? वी आर नॉट हेल्पिंग एनी वन हियर। तो मेरा जो मैसेज है इस फिल्म का, लोगों की कॉन्शियसनेस को रेज करना, हायर लेवल, गटर से लेके नॉर्मल में लेके आना, नॉर्मल से लेके पूरे हाईएस्ट लेवल तक लेकर आना। वहाँ पर जो एक बैठा हुआ है अंदर, उसके साथ उनको मिलाना, वो तभी पॉसिबल है। तो कॉन्शियसनेस एंड ट्रू कॉन्शियसनेस, जब हम कॉन्शियसनेस को ट्रू कॉन्शियसनेस के साथ मिला देते हैं और हमारी कॉन्शियसनेस एक हो जाती है, इसका मतलब क्या है? यू नो, वी रीच टू हायर स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस। हम लोग बेसिकली जो हमारे अंदर एक है, जो ट्रू कॉन्शियसनेस है, ट्रू कॉन्शियसनेस कौन है? वो है महायोगी। देयर इज ओनली वन ट्रू कॉन्शियसनेस। वो हर एक में है, हिंदू में भी है, मुस्लिम में है, क्रिश्चियन में भी है, एवरीवेयर इज ए ट्रू कॉन्शियसनेस। तो इस फिल्म के अंदर हमने दिखाया है कि हाउ डू वी गो डीपली टू एवरी सोल एंड फर्स्ट कनेक्ट देम विद देयर सेल्फ। अगर मैं इन भाई साहब को उनकी अंदर का जो बैठा हुआ भगवान, अगर वो आत्मा से परमात्मा को मिला देता हूँ, तभी तो वो अपने आप को पहचानेंगे, तभी तो वो देख सकते हैं सही क्या है, गलत क्या है। अगर अपने माइंड लेवल तक रहेंगे तो दे कैन नॉट सी इट। उनको तो माइंड में ये पता है शाम को 500 रुपये चाहिए, कैसे भी आना चाहिए यार, 300 बनाया, अब वो 200 कैसे बनाओ। तो मोस्टली जो यहाँ की हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है वो बेचारे सर्वाइवल मोड में है। उनको घर में घर चलाना है, रेंट पे करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज देयर इज अ गैप बिटवीन द पॉवर्टी एंड जो जिनके पास करोड़ों रुपया, अरबों रुपया पड़ा है, उनको पता नहीं क्या करना। इतने बड़े बंगले में अकेला रहता है, राइट, वो झोपड़ी में 20 लोग रहते हैं। तो इस जो इतना बड़ा गैप है उसको हम कैसे ख़त्म कर सकें, ताकि वो बंगले वाला सोचे कि यार 20 लोग हैं झोपड़ी में, 10 लोग हैं, मेरे घर में आकर क्यों नहीं रहते। ये होमलेसनेस की प्रॉब्लम, ये पॉवर्टी की प्रॉब्लम हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में है। तो मैं सोचता हूँ कि वो तभी ख़त्म हो सकती है जब हम लोगों को उनकी कॉन्शियसनेस को रेज करें, उनको सीधा आत्मा तक जाएं। तो मैं एज ए अंतर्यामी रोल, जो महायोगी का रोल है, हर आत्मा के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ। बी वन विद एवरी वन, देयर इज अ वन विद इन एवरी वन। आपके अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है। जब मैं आपका भगवान पहचान पाऊंगा तभी आप मेरा भगवान पहचान पाएंगे। तो मेरे को आप तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा वो क्या है, मेरे को अपनी ईगो को सरेंडर करना पड़ेगा।
मेरे को ये नहीं देखना कि यार ये रिक्शा वाला है या कैमरामैन है या मिलीनियर है, आई डोंट केयर। बंदा है, भगवान इसके अंदर है, हाउ डू वी आई कनेक्ट। तो वो कहाँ से आएगा? वो आएगा प्योरिटी लेवल से, ऑनेस्टी से। जब हम लोग ऑनेस्ट हो जाएंगे, जब हम प्योर लेवल पे पहुंच जाएंगे, हायर कॉन्शियस पे पहुंच जाएंगे, जब हम समझेंगे यार इसकी प्रॉब्लम तो मेरी प्रॉब्लम है। वननेस का मतलब क्या है? अगर भाई के पास आज की डेट में अपनी गाड़ी का वो जो मॉर्गेज पे जो इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए पैसे नहीं है और मेरे पास 3 गाड़ियां खड़ी हैं और मेरे पास पैसा है, तो मैं इसको बोलूँगा यार ये लो भैया आप अपना जाके पे करो या आप गाड़ी लो, मेरे को जितना देना दो। तो दैट मॉडल ऑफ वननेस इज हेल्पिंग ईच अदर, टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर, यू नो, केयरिंग एंड शेयरिंग इज द मेन गोल ऑफ दिस मैसेज ऑफ वननेस, कि हम आपस में मिलाएं कैसे। और मैंने इस फिल्म के अंदर क्या दिखाया है? बी वन विद एवरी वन। मतलब छोटा सा घर है, घर में 6 लोग हैं, बेचारे 6 ही नहीं है सेम पेज के। बीवी इधर जा रही है, आदमी इधर जा रहा है, बच्चे इधर जा रहे हैं, दे आर नॉट ऑन सेम पेज। तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब एक छोटी सी फैमिली को हम नहीं कर सकते टुगेदर, तो इतने बड़े संसार को कैसे करें? तो तभी पॉसिबल है जब महायोगी कहता है मैं तो तेरे अंदर भी हूँ, मैं तो इसके अंदर भी हूँ, मैं उसके अंदर भी हूँ। सो ही कनेक्ट्स विद एवरी सोल। So it's a soul journey, you know. Then I realized, you know, realization के बाद क्या होता है? अब मैंने बड़े बड़े नेताओं या कलाकार, जो बड़े बड़े बिलियनर्स सबको मैंने मैसेज दे दिया। हाउ? क्योंकि उनके दिमाग तक जाऊंगा तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। मिलियंस लोग, हजारों लोग हैं वहाँ पे, मेरा नंबर तो आएगा नहीं, मैं कितना भी बोलूँगा नहीं समझ आएगा। उनके दिल तक जाऊँगा तो भी दिल तो आगे भरा हुआ है 50 लोगों से, मिलियंस लोगों से, कहाँ से मेरी बात सुने? देयर इज ओनली वन वे टू चेंज दैट, वो है उसकी आत्मा। तो ये महायोगी क्या करता है कि उस लोगों की आत्माओं तक पहुंच जाता है। तो वो सोचता है कि जब आत्मा को कंट्रोल करूंगा तो आत्मा के थ्रू आई विल गो इन हार्ट, देन आई विल गो टू द माइंड। तो लोग इधर से जा रहे हैं, दिमाग से, दिल से, फिर आत्मा से। मैं कह रहा हूँ पहले आत्मा से जाओ, तो तुम्हारी आत्मा से जाओगे तो तुम परमात्मा को मिल लोगे जो तुम्हारे अंदर ही है। मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारों कहाँ ढूंढ रहे हो आप? वो तो तुम्हारे अंदर है। तो आप उसको मिल लोगे, तो उसको मिलने से क्या हो जाएगा? आपको पता है क्या है गलत, क्या है सही, क्या है। अगर आप वही नहीं सोच पाते कि रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, यू कैन नॉट रीच टू द अल्टीमेट गोल। सबसे पहले पता है कि इंसान सुबह घर से निकला, उसको कहना क्या है। तो मेरा जो मैसेज है इज़ वेरी कोर, यू नो, अपने अंदर का जो भगवान है उसको पहचानो। बी वन फर्स्ट ऑफ ऑल योर सेल्फ। उसके बाद अपने दोस्त के साथ एक बनो, अपने भाई के साथ बनो, अपनी बहन के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। फिर अपने पड़ोसी को पूछो, भैया तेरे को कुछ चाहिए? मेरे पास 20,000 रुपया पड़ा हुआ है, तू तेरे घर में खाना नहीं है, ले ले, चाहिए चीज़। फिर एरिया को पूछो, फिर देश को पूछो, फिर दुनिया को पूछो। हम बोलते हैं, यू नो, वासुदेव है कुटुम्बकम, बट हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, राइट? तो हमें उस चीज़ को फॉलो करने के लिए हमारे अंदर का वासुदेव तो जागना है पहले। अगर वो ही नहीं जागेगा तो हम नहीं फॉलो कर पाएंगे। तो मैं ये फील करता हूँ जब भी आता हूँ इंडिया में, मतलब आप बिलीव करेंगे आई एम डूइंग इट, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, यू नो, अभी फिर से, बट मैंने गिव अप नहीं किया। जितना मैं कर सकता हूँ करता हूँ फाउंडेशन के लिए। नाउ वी आर बिल्डिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, वी वांट टू स्टिल हेल्प। फिल्म जो है 90% ख़त्म हो चुकी है। हाँ जी, फिल्म जो है 90% ख़त्म हो चुकी है। 5-10% थोड़ा सा काम है, वो भी हो जाएगा। वी आर डूइंग फ्रॉम 2K to 4K। हम लोग US के अंदर रिलीज़ करेंगे पहले, क्योंकि इंग्लिश की मूवी है। मैं अमेरिका में रहता हूँ इतने सालों से, तो उसके बाद इस फिल्म को हम यहाँ पर रिलीज़ करेंगे। हम इंडिया में इंग्लिश में भी करेंगे और डब करके हिंदी में भी करेंगे।
हाँ, ये जो फिल्म है इट विल वेरी मच गोइंग टू हेल्प टू एटलीस्ट मेक पीपल थिंक, लोगों को सोचने के में मजबूर कर देगी कि ये थोड़ा जो हम कर रहे हैं इट्स रॉन्ग। तो इस फिल्म को जो हम क्या कर रहे हैं, डब कर रहे हैं, अरेबिक में डब कर रहे हैं, क्योंकि इतनी लड़ाई हो रही है। देखो अभी इजराइल के अंदर, फलस्तीन, ऑल दीज कंट्रीज, फिर रशिया में डब कर रहा हूँ इसको मैं। सो आई वांट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द वननेस टू मैनी पीपल। और इस फिल्म में क्या है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों दिखाया है। देखो पास्ट में जो हुआ क्यों हुआ ये भी दिखाया है। हम लोग लड़ते मरते रहते हैं, अरे वो मुसलमानों ने हमारे टेंपल तोड़ दिया, उसने ये कर दिया। हम रिलीजन के ऊपर कितनी फाइट्स होती रहती है, राइट। हिंदुस्तान में क्या होता है, धर्म का नाम लेके फाइट करो। तो इस फिल्म को देखने के बाद आप एक बार सोचोगे यार, व्हाट ए दिस सीजन ऑफ महायोगी, महायोगी कहाँ से कहाँ तक हमें इनलाइटन कर दिया। तो आप ऑटोमेटिकली पीस जोन में आ जाओगे। जब तक वो शांति वाला जोन नहीं आएगा तो आप आत्मा तक नहीं जाओगे, राइट। तो मैं आप लोगों को आत्मा तक लेके जाऊंगा। ये मैसेज जो है आत्मा से फिर मैं पीस तक लेकर आऊँगा। तो आप बोलोगे यार ये तो हमने आज तक देखा नहीं है, तो क्या है फिल्म समझ नहीं आ रही। बट एंड ऑफ द डे आपको समझ आएगी, अच्छी तरह समझ आएगी, क्योंकि हिंदी में भी बना रहे हैं, इंग्लिश में भी बना रहे हैं। और कोशिश करूँगा हर लैंग्वेज में इसको डब करूँ ताकि लोग उस मैसेज को समझें। कब तक देख पाएंगे लोग? 23 में, 24 इसी साल देख पाएंगे। हाँ बोल, आपने कोई और पूछना है, कोई और क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सारी बातें बोल दी सर, कोई बात नहीं। नहीं बताइए। जय माता की। नवरात्रि का मैसेज यही है कि भाई पीस, लव, वननेस, यू नो, आपस में भाईचारा बना के रखिए, प्रेम बना के रखिए, यू नो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है, तीन ही मैसेज हैं दुनिया में, पीस, लव, वननेस। तो जो वननेस का मैसेज जो आप लोग लेकर जा रहे हैं, उसको थोड़ा आप अपने मीडिया में जाने से पहले सब लोग जो बैठे हैं यहाँ अपने दिल में उतारो कि ये बंदा जो हमारे सामने बैठा है समझा क्या रहा है। इफ़ ही इज़ वर्किंग सच ए करेक्टर, सच ए बिग रोल ऑफ महायोगी, तो ये मैसेज हमारे दिमाग में जा रहा है। ये जो बोल रहे हैं या हम भूल जाएंगे शाम तक, कल तक। तो उसको आपके अंदर का जो भगवान है उससे पूछिए, उससे कनेक्ट करिए। पहले कुछ लिखने से पहले, कुछ छापने से पहले, आई वॉन्ट एवरीबडी कनेक्ट विद इन द वन सेल्फ। अपने अंदर जाके थोड़ा सा देखिए। बाकी ये है कि देखो ये पहली फिल्म ऐसा है, बट उसके बाद हम लोग ये नहीं कि एंटरटेन, आई विल एंटरटेन विद एक्सीलेंट। मेरा इनको उन्होंने बताया था, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ अमित जी। हाँ आ रहा सब। उनका वो जो एक पोएम है, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जीवों में आशाएं, दिल में अरमाने ही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपने हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से क्या तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में इतने जुल्म नहीं जितने सहने की ताकत है, इस जग में इतने जुल्म नहीं जितने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकर फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे।
झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने हाथों से रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम जब भी मुझको इन हालातों की भट्टी में झोंकोगे, तब सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? So Amit ji is my favorite, and I respect and regard from all the time.